Hello, dear students. I hope you all are doing well. Today, I'm again picking the same chapter, Class 8th DAV Board English Practice Book, Chapter number 1, Tenses. We are on page number 10. I have already uploaded 2 videos related to this chapter. So, let's start it. Read the following. First of all, simple past and past continuous we are going to do. I painted my room yesterday. I was painting my room at 5 p.m. yesterday. In sentence 1, the action was completed in the past. It was totally completed. In sentence 2, the action of painting was in progress at some point of time in the past. It means when the action is completed in the past, then we use simple past tense, and in simple past tense we use second form of the verb, right? And when the action was going on, it was in progress, it was in continuation in some point, on some point of time in the past, then we use past continuous tense. And as you can see, in the past continuous tense we use helping verb was and ing with the first form of the verb. Was and were, both the helping verbs we use according to the subject. Now, simple past is used to express a completed past action, whereas past continuous is used to express an action that was going on at some point of time in the past. I have already explained you this. These two tenses are often used together to show that one action was going on when another action happened. Now we usually use these two tenses in one single sentence. Just like this: I was doing my homework when lights went off. One action is in progress, that is I was doing my homework, and second action already completed, that is lights went off. जब लाइट बंद हो गई तो मैं अपना होमवर्क उस वक्त कर रहा था. मतलब मैंने होमवर्क करना बंद नहीं किया था, लेकिन लाइट पहले ही बंद हो गई. So one action completed. In completed action we use simple past tense, and one action was in progress. For the progressive action we use past progressive tense, that is past continuous tense. Now let's do the fill-ups. Ekta dashed her purse accidentally while she dashed the metro. So Ekta dropped. Fine, answer is dropped, and in dropped we use double P. Ekta dropped her purse accidentally while she was boarding. Now one action of dropping the purse, that is already completed. That is why we have used the word dropped. Fine. So Ekta dropped her purse accidentally. Accidentally का मतलब यहाँ है गलती से. गलती से एकता का जो पर्स है वो ऑलरेडी गिर गया है, वो काम कंप्लीट हो चुका है. और वो कब गिरा? जब वो मेट्रो ट्रेन पर चढ़ रही थी. बोर्डिंग मीन्स क्लाइंबिंग दैट ट्रेन, उस पर चढ़ रही थी. फाइन. So, एक action already completed and second one was in progress. I dash a story to my daughter when the guest dash. I was telling a story to my daughter when the guest arrived. Okay, I was telling. अब मैं सबके आंसर्स नहीं लिख रही, पहले भी मैंने आपको बताया था, उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है. फाइन, तो आप सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें. I was telling a story to my daughter when the guest arrived. It means one work completed, that is guest arrived, and one work was in progress, that is I was telling a story to my daughter. Next is, when the thief realized that the policeman was looking at him, he ran away. अब इस सेंटेंस में दो ऐसे सेंटेंस हैं, दो ऐसे काम हैं जो पूरे हो चुके हैं, और एक ऐसा काम है जो प्रोग्रेस में है. दो जो पूरे हो चुके हैं उनमें हमने सिंपल पास्ट यूज़ किया है, रियलाइज्ड एंड रैन अवे, और जो प्रोग्रेस में है उसमें हमने वॉज लुकिंग यूज़ किया है. अब ये वाला सेंटेंस देखिए, जस्ट एज आई डैश आउट ऑफ द ऑफिस इट स्टार्टेड रेनिंग. नाउ दिस इज़ एन एक्सेप्शनल सेंटेंस, इसमें दोनों ही काम कंप्लीट हैं एक तरह से. जस्ट एज आई वेंट आउट ऑफ द ऑफिस, ठीक है, साइमल्टेनियसली दो जो काम है वो चल रहे हैं, तो इसमें आएगा जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकला. ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया. इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होनी शुरू हो गई. ठीक है, बारिश स्टार्ट हो गई. अब देखा जाए तो इसमें द फर्स्ट पार्ट वेंट जिसमें मैंने लिखवाया उसमें एक्शन कंप्लीट है, और बारिश स्टार्ट हो गई ये प्रोग्रेस में है एक तरह से. ठीक है, माई फीवर डैश गेट वर्स सो आई डैश टू अ डॉक्टर. माई फीवर डैश वर्स so I
डैश टू अ डॉक्टर, माई फीवर वॉज गेटिंग वर्स सो आई वेंट टू अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सॉरी। ज्योति डैश हर हैंड वाइल शी डैश इन जयपुर, ज्योति फ्रैक्चर्ड हर हैंड वाइल शी वॉज हॉलीडेइंग इन जयपुर। येस, हॉलीडे वर्ड को भी हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं कि जब वो जयपुर में हॉलीडे मना रही थी, अपनी एंजॉय कर रही थी, तो उसका हैंड फ्रैक्चर हो गया। आई डैश द आईफिल टावर व्हेन आई डैश इन पेरिस, आई सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म होती है सॉ, आई सॉ द आईफिल टावर व्हेन आई वॉज स्टेइंग इन पेरिस। Next, when the principal dash into the classroom, everybody, when the principal came into the classroom, everybody was making mischief. Mischief means शरारतें करना. The girls were singing songs loudly and the boys were making paper balls. अब boys यहाँ were आएगा क्योंकि boys plural है, girls भी plural है, दोनों जगह were singing, were making आएगा. Next है fill in the blanks with the present perfect tense of the verbs given in the bracket. Now we have to use present perfect tense. In present perfect tense we use the helping verbs has, have with third form with V3. ठीक है, V3 के साथ हम has और have यूज़ करते हैं present tense में, फाइन, प्रेजेंट परफेक्ट में। और जनरली हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहाँ यूज़ करते हैं वेयर द वर्क हैज़ रिसेंटली डन। ठीक है, अभी अभी कोई काम हमने किया है और कोई ऐसा काम है जो हमने किया चाहे थोड़ी देर पहले लेकिन अभी भी उसका असर चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए माई पेरेंट्स डैश टू सेंड मी टू पिकनिक, माई पेरेंट्स हैव अग्रीड। अब पेरेंट्स यहाँ पे प्लूरल वर्ड है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए मैंने हैव लगा दिया, फाइन, हैव अग्रीड। अग्री की थर्ड फॉर्म जो है दैट इज़ यहाँ पे डी लग जाएगा तो अग्रीड बन जाएगा। माई पेरेंट्स हैव अग्रीड टू सेंड मी टू द पिकनिक, कि वो मान गए हैं मुझे पिकनिक पे भेजने के लिए। द टीचर हैज़ कॉल्ड माई पेरेंट्स फॉर मीटिंग। अब द टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मैंने हैज़ लगाया और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड है। Vikram dash a new computer, he can work much faster now. Vikram has got a new computer, he can work much faster now. Vikram again singular, so मैंने वहाँ पे has got कर दिया। Rahul dash from the stairs, we must take him to the doctor. Rahul has fallen, ठीक है, fallen is the third form, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म fall है, सेकेंड fell है और थर्ड fallen है। तो हमने परफेक्ट टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें हम V3 यूज़ करते हैं, दैट इज़ वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइसेस ऑफ द बेसिक कमोडिटीज़ हैव राइजन sharply over the last 2 months, although the government has taken a lot of measures to control the situation. People do not look satisfied. ठीक है, अब देखा जाए तो ये बड़ी इजी एक्सरसाइज है बिकॉज क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि सिर्फ एक ही तरह का टेंस इसमें फिल करना है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट, और कुछ आना ही नहीं है। सो अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का रूल पता है दैट इज़ हैज़ विद सिंगुलर्स एंड हैव विद प्लूरल्स प्लस verbs third form, it's very easy for you to fill it. Next is dash you dash your mobile phone, have you found your mobile phone. Now how to ask question in present perfect tense, उसके लिए हम ये लिख रहे हैं have you found। ठीक है, फर्स्ट वाले में यहाँ आ जाएगा have और यहाँ पे आ जाएगी find की थर्ड फॉर्म found। पर्सन आंसर कर रहा है no I dash for it everywhere, no I have seen, I have looked for it everywhere। वो कहता है no I have looked for it everywhere, कि मैंने इसको हर कहीं ढूंढ लिया है। नई बुक्स जो हैं उसमें ये वाली फिलअप ऐसे नहीं दी हुई, न्यू में दिया हुआ है no have you seen it anywhere। ठीक है, नो जो न्यू बुक्स हैं, न्यू एडिशंस हैं, उसमें ये वाला सेंटेंस नहीं है जो आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उस पर सेंटेंस है नो डैश यू डैश इट एनीवेयर, नो हैव यू सीन इट एनीवेयर। ठीक है, सी की थर्ड फॉर्म सीन है, सी सॉ सीन। नेक्स्ट इज आई डैश फिनिश माई होमवर्क, नाउ कैन आई कम विद यू टू द मॉल। आई डैश माई होमवर्क, नाउ कैन आई कम विद यू टू द मॉल, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। I dash in this hotel twice, it has really nice rooms. I have stayed in this hotel twice, it has really nice room. अब ये देखो, अब ये जो लास्ट आपको सेंटेंस है इसमें उसने वो जो काम किया है होटल में 2 बार रहने का, वो अभी अभी नहीं किया, वो किया तो पहले था लेकिन उसके दिमाग पे अभी भी इस चीज़ का इतना असर है कि मैं यहाँ रहा था तो यहाँ के रूम्स बहुत अच्छे हैं। सो परफेक्ट टेंस हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई काम हमने अभी अभी किया हो, आज के दिन में किया है, ठीक है, या कोई ऐसा काम किया पहले था लेकिन
अभी तक उसका हमारे ऊपर असर है. Present perfect tense is used to express an action recently completed, an action that was completed in the past but whose effect can be felt at the time of speaking. ठीक है, यही मैंने आपको समझाया. अब आते हैं वर्कशीट नंबर 8 पे. There is a difference of simple past और present perfect. I call the plumber to fix the leaking water pipe. I have called the plumber to fix the leaking pipe. Please see both of the sentences very carefully because there is a difference in their meaning. Now he may arrive any moment. That is a part of the sentence B. Sentence number 1, I call the plumber to fix the leaking water pipe. Here action talks about, this sentence talks about an action in the past that has no connection with the present. And in sentence number 2, sentence B talks about a past action that is linked with the present. ठीक है, action call the plumber, connection with the present, he may arrive any moment. Fine. अब अगर इसको देखें तो फर्स्ट सेंटेंस है आई कॉल द प्लम्बर टू फिक्स द लीकिंग पाइप. ये वाला जो सेंटेंस है ये है आपका सिंपल पास्ट. ये बता रहा है कि मैंने पास्ट में प्लम्बर को बुलाया था ताकि वो लीकिंग पाइप को ठीक कर दे, उसको फिक्स कर दे. बुलाया था मतलब पास्ट की बात है ये. और जो दूसरा सेंटेंस है वो कह रहा है कि मैंने उसको बुलाया है, यानी कि मैंने उसको अब बुलाया है ताकि वो लीकिंग पाइप को फिक्स कर दे. वो किसी भी समय आता होगा. ये डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में. रिमेंबर बॉक्स देख लेते हैं. इफ़ अ पास्ट एक्शन हैज़ अ लिंक विद द प्रेजेंट वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट. इफ़ पास्ट एक्शन हैज़ नो लिंक विद द प्रेजेंट वी यूज़ सिंपल पास्ट. Also remember that we do not use any past time reference such as yesterday, last week, etc. with present perfect tense. ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे present perfect tense जो है हमारे पास, उसमें हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा सेंटेंस के लास्ट में येस्टरडे या टुडे या लास्ट वीक, क्योंकि वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. सेंटेंस से ही उसका मीनिंग क्लियर होता है. नाउ सम वर्ब्स इन द सेंटेंस given below have been used in wrong forms. Underline them and write the correct form. One has been done for you. फाइन, आपको सेंटेंस दिए हैं, उसमें एक मिस्टेक है, आपने मिस्टेक पिक करके ठीक करना. वन एग्जाम्पल हैज़ ऑलरेडी बिन डन फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन प्रॉपर वे. आई न्यू हिम सिंस चाइल्डहुड. ठीक है, आई न्यू हिम सिंस चाइल्डहुड. अब इसमें मिस्टेक क्या है? इसमें मिस्टेक है ये, इसकी जगह आना है आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड. ये आएगा आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड. अब ये क्यों आएगा? क्योंकि बचपन से वो उसको जानता है और आज दिन तक जानता है. ठीक है, उस चीज़ का असर उसके ऊपर आज भी उसकी लाइफ का वो पर्सन पार्ट है. तो आई न्यू हिम सिंस चाइल्डहुड नहीं आएगा. आई हैव नोन हिम, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, मतलब अब तक जानता हूँ. आई हैव नोन आएगा, जो कि नोन इज़ द थर्ड फॉर्म. वेरियस न्यू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज बाय आवर साइंटिस्ट मेड आवर लाइव्स एक्सट्रीमली कंफर्टेबल. हाँ जी, इफ़ वी सी दिस सेंटेंस देयर इज़ द सेम मिस्टेक अगेन. ठीक है, इसमें मेड नहीं आना, इसमें आना है हैव मेड. हैव मेड आएगा. ठीक है, अब रीज़न सेम है, इसमें हैव मेड क्यों आना है? क्योंकि जो भी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की हैं साइंटिस्ट ने, उनका असर अब भी हमारी लाइफ पर है और आगे भी रहेगा. द दिल्ली मेट्रो मेड कम्यूटिंग अ कंफर्टेबल एक्सपीरियंस फॉर द पीपल. अगेन द सेम मिस्टेक. द दिल्ली मेट्रो हैज़ मेड. दिल्ली मेट्रो जो है उसने दिल्ली के लोगों के लिए कम्यूटिंग होता है आना जाना, एक जगह से आना जाना, ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया है. अभी भी मतलब वो उसका असर है, अभी भी उनकी लाइफ उसकी वजह से इजी है. सो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, नॉट सिंपल पास्ट. Next is Dr. Laennec of France has invented stethoscope in 1816. पहले तो ये एक जीके की बात है. ठीक है, हमारी नॉलेज एनहेंस होती है इस बात से कि स्टेथोस्कोप कब इन्वेंट हुई और किसने की. अब इसमें हैज़ इन्वेंटेड नहीं आ सकता. ठीक है, इसमें क्या आना है? इसमें हैज़ इन्वेंटेड नहीं आना. फाइन, हाँ जी, इसमें आना है इन्वेंटेड, क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ है साथ में. ठीक है, क्योंकि इसमें एक टाइम पीरियड दिया है. मैंने पहले ही बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में लास्ट में कोई टाइम पीरियड नहीं दिया होता, बट इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इन्वेंटेड आएगा. हैज़ इन्वेंटेड नहीं आ सकता. हैज़ इन्वेंटेड अगर हम लिखते हैं तो फिर हमें ये टाइम नहीं चाहिए, और अगर टाइम भी नहीं होगा फिर भी हैज़ इन्वेंटेड लिखते हैं तो इसका मतलब बन जाएगा कि उन्होंने अभी अभी इसको इन्वेंट किया है. सो यहाँ इन्वेंटेड आएगा. नेक्स्ट इज़ The invention of the stethoscope has actually happened
accidentally, again the same problem, the invention of the stethoscope happened आएगा, has नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी पुरानी बात है और एक्सीडेंटली उसका जो इन्वेंशन हुआ था उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं है आज के टाइम में. हमारे ऊपर सिर्फ इस चीज़ का असर है कि स्टेथोस्कोप जैसे भी मर्जी इन्वेंट हुआ था पर हम उसको आज की हमारी लाइफ में या डॉक्टर्स अपनी लाइफ में उसको यूज़ करते हैं. तो यहाँ हैपन्ड आएगा बिकॉज इट इज़ टेलिंग अबाउट एन इवेंट दैट हैपन मैनी ईयर्स अगो. Next is the state government built 7 flyovers recently to tackle the increasing traffic. The officials hope these will save at least 30 minutes of travel time. Now इसमें क्या मिस्टेक है? The state government has built, ठीक है, उन्होंने वो बनाए हैं और उनका हमारी लाइफ पे असर है. Has built, स्टेट गवर्नमेंट ने 7 फ्लाईओवर रिसेंटली बनाए हैं टू टैकल द इंक्रीजिंग ट्रैफिक. फाइन, इंक्रीजिंग ट्रैफिक को टैकल करने के लिए उन्होंने ये बनाए हैं. फाइन, द ऑफिशियल्स होप्ड, और एक मिस्टेक है इसमें होप्ड आएगा. ऑफिशियल्स होप्ड दीज वुड सेव एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ ट्रैवल टाइम. अब ये ऑफिशियल्स ने बनाने से पहले की उनकी बात है, बनाने से पहले की उनकी थिंकिंग है कि 7 फ्लाईओवर्स बनाने से पहले जब वो पेपर वर्क कर रहे थे, डॉक्यूमेंट वर्क कर रहे थे कि 7 फ्लाईओवर्स बनाने हैं, तभी उन्होंने अपने माइंड में क्या होप किया था कि इससे जो लोग हैं उनका ट्रैवल टाइम में 30 मिनट्स कम हो जाएगा. वुड सेव, ठीक है, वुड हम कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे फ्यूचर में कोई घटना घटने के लिए हम एक्सपेक्टेशन करते हैं. अब वो 30 मिनट सेव होंगे कि नहीं होंगे वो तो फ्लाईओवर्स बनने के बाद पता लगेगा, ठीक है. Next is fill in the blanks with either simple past or present perfect tense of the verbs given in the bracket. So the famous industrialist Mr. Kapoor has donated rupees 50 lakh to an orphanage. Mr. Kapoor has handed over the check to the manager of the orphanage this morning. Mr. Kapoor made many such donations in the past. ठीक है, कहते हैं मिस्टर कपूर जो है उन्होंने डोनेट कितने किए हैं? 50 लाख एक ऑर्फनेज को. ऑर्फनेज होता है अनाथ आश्रम, ठीक है. और हैंड ओवर किसको किया है चेक? उन्होंने वहाँ के मैनेजर को. हैज़ हैंडेड ओवर की, ये काम उन्होंने अभी अभी किया है और पास्ट में वो इस तरह के डोनेशंस करते रहते हैं, इसलिए मेड का मेड ही आ गया सेम. नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा ऑफ दिल्ली हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू वॉक थ्रू द एंटायर नेशन ऑन फुट. ठीक है, कि वो पहले पर्सन बन गए हैं जो पूरा उन्होंने नेशन का जो चक्कर लगाया वो पैदल लगाया है. It dash him 4 years to complete this feat. 4 years to complete this feat is 4 years to complete. It took him 4 years. मतलब कि उनको 4 साल लग गए ये पूरा काम कंप्लीट करने में. अब यहाँ फीट वर्ड दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है, फीट वर्ड दिया जिसका मतलब है समथिंग डिफिकल्ट विच नीडेड अ लॉट ऑफ स्किल और स्ट्रेंथ और करेज टू अचीव इट, उसको हम फीट कहते हैं. समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, जिसके लिए ढेर सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है, करेज चाहिए जिस काम को करने के लिए, उसको हम फीट कहते हैं. सो इट टुक हिम 4 years. यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज़ किया है. नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ declared Monday a public holiday due to the sudden demise of the minister. Demise का मतलब होता है डेथ हो जाना, ये रहा वर्ड, ठीक है. demise means डेथ होना. The minister died of heart attack. यहाँ पे पास्ट आएगा, ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस इन द ब्रैकेट. अब आपने इसमें पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है. सो दिस इज सुपर इजी एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करनी है, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट. और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड आता है. और इसके साथ आता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे प्रेजेंट में वी यूज़ हैज़ एंड हैव, हैज़ विद सिंगुलर्स, हैव विद प्लूरल्स प्लस V3 इन परफेक्ट टेंस. इन अ सिमिलर वे पास्ट परफेक्ट में वी यूज़ हैड इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट. कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर और प्लूरल हो, सबके साथ हैड प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो दिस इज़ वेरी इजी. मैं आपको फटाफट आंसर्स बोल रही हूँ, ठीक है. फर्स्ट इज़ हैड प्रोमिस्ड, सेकेंड इज़ हैड क्लीन्ड, थर्ड इज़ हैड पुट. पुट की तीनों फॉर्म पुट ही होती हैं, V1 V2 V3, तो इसलिए पुट ही आएगा. हैड चेंज्ड, नेक्स्ट इज़ हैड फिनिश्ड, नेक्स्ट इज़ हैड इवन लर्नड और लर्नड, दोनों सही हैं, ठीक है. चाहे लर्नड लिख दो, ED लगा दो लास्ट में, या T लगा दो, लर्नड, दोनों ही ठीक है. Then had helped and had kept,
ओके अब इस पे मैंने ज़्यादा अटेंशन पे क्यों नहीं की इस वर्कशीट पे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टेंस हमने फिल करना है सारी फिलिप्स में, एंड दैट इज़ पास्ट परफेक्ट। 2 या 3 नहीं है कि हमें पढ़ना पड़े कि कहाँ कौन सा आना है। फाइन, सो हियर आई एम हॉल्टिंग द वीडियो। रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नीड 2 more videos, 2 more videos बनेंगे इस चैप्टर पे। then I'll go on narration and I'll try to complete it as soon as possible. Thank you very much. Have a nice day. Take care. Bye bye.